Item 15, 16, 17, 18, 19 in today's list of business, Madam. Madam, a pattern of deception repeats every year with Ministry of Minority Affairs. In 23-24, the government allocated 3,097 crores in BE. Ministry of Minority Affairs surrendered 2,060 crores, barely utilizing the funds. The same rule is being followed, pattern is followed in 24-25, where the allocation of 3,083 crores has been slashed to 1,681 crores, with no effort to demand admitted funds through the supplementary demands, Madam. Madam, scholarship for minority students have been gutted. Pre-matric scholarship, only 90 crores of 326 crores have utilized. Post-matric, 343 out of 1145 crores have utilized, leaving thousands of students without promised support. Madam, government is not willing to make minority scholarship demand-driven. The unit cost of scholarship for 3 schemes have not been revised in 2007 and 8, and scholarships are not being sanctioned because of lack of approval by Cabinet Committee of Economic Affairs since 22-23. It is a known fact, empirical studies have proven literacy rate of Muslims for persons aged 7 years and above is lower than the All India literacy rate of same age. According to one study, Madam, the higher education Muslim enrollment is 8.91% compared to All India community is 26.7. Madam, PM Vikas, a scheme meant for skilled and entrepreneurship of minorities, has met the same fate. 540 crore allocation in 2024, only 240 crores have been utilized. This scheme was aimed to benefit 9 lakh candidates by 25-26. The budget has been slashed from 500 crores B to just 20 crore in RE 24-25, Madam. Madam, in supplementary grants, Ministry of Agriculture, there is a scheduled caste sub-plan. Since 2021, utilization has never crossed 70%. I demand from the government to ensure that the scheduled caste sub-plan, their scheduled caste farmers must benefit and not then let them sit on paper year after year. Ministry of Fertilizer and Chemicals, Madam, in this supplement demand, 14,000 crores is being asked. Madam, this is not budgeting, this is firefighting. This talk of Atmanirbhar Bharat is only empty talk. How did the government allow such a critical sector to be held hostage by China? 30% of India urea imports in 23-24 come from China. Key raw materials like phosphoric acid, ammonia come from China, which makes Indian prices vulnerable to China trade policies. Madam, I'm thankful that Minister Piyush Goyal is here. A specific point on US tariffs, Madam. Goldman Sachs estimates that if the US imposes tariffs, this could decrease India's GDP growth by 0.6%. Madam, US is a major buyer of Indian agricultural produce. We export nearly 6 billion of agricultural produce to US. If imposition of higher tariffs will make Indian produce less competitive, affect incomes in the agricultural sector, Madam. We export generic pharmaceuticals to the worth of 18.5 billion to US, just to US, Madam. If US tariffs could significantly impact these exports, Madam. Jewelry and precious metals are at risk because of US tariffs. This industry faces 13.32 tariff differential affecting SMEs engaged in jewelry manufacturing. Madam, we export to US diamond and gold products worth 12 billion. This tariff hike could reduce demand, impact jobs in Surat and Mumbai, Madam. I want a categorical assurance from the Minister and the government that the US tariffs will not be imposed on India from April 2. Bilateral trade agreement is going on, but the phase 1 is due by September, Madam. Can the government tell us that the EU market also has become restrictive? Will this government give a categorical assurance that neither CBM, EUDR will not be imposed on India by you, which will affect 3 billion of Indian exports, Madam, particularly iron and steel, according to economic survey. EUDR, 9.5 billion of Indian exports will be affected. Madam, in this supplement demand, MEA is asking 300 crores. Will India get a sanction waiver for Chabar port as we got in 2018? Madam, on Manipur budget, 14,763 school-going children are displaced due to violence. 96 schools have been used for relief measures. Internet shut for 54 days. And this government increased only 2% for education for Manipur. Madam, 258 killed, 60,000 displaced, which includes 22,000 children, 1,000 injured. And in displaced camps, Madam, on Manipur, Madam, concluding, 65.8 are suffering of PTSD, 24.8% increase in moderate anxiety. What do? You don't increase help by 4 crores. Water supply sanitation, Madam, 19% reduction. Significant cut in capital outlay in Manipur budget from 1612 crore to 1307 crore, Madam. Central assistance for providing temporary shelter to displaced families has seen a reduction of 75% from 60 to 15 crores. Rural Manipur, Madam, had highest inflation in July
that is 10%. Madam, 5,000 hectares of agricultural land, 15,437 metric tons of paddy crops worth 38.6 crores has been lost due to ethnic violence. Madam, you will be surprised to know agriculture allocation reduced by 8%. Total budget for police has been cut by 2% compared to last year. And concluding, Madam, Manipur is the poorest state, which has a per capita income of 7,630 per month, which ranks 4th from the bottom. Madam, in last, I want to conclude. We have heard the Honorable Piyush Goyal stood up and appreciating this, the speech made by Abdul Samad Samdani from Kerala. I want to know, I am very thankful to him. मैं शुक्रगुजार हूं उनका मैडम कि उन्होंने उर्दू के अशार पढ़ने पर इसको कटमुल्ला की जबान नहीं कहा, जो उनके एक वजीर आला ने कहा। ये भारत की खूबसूरती को आप नहीं समझ रहे हैं। आपको समझना चाहिए उर्दू इस मुल्क की आजादी की जबान है। अपने मुख्यमंत्री को समझाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सदस्य श्री अरविंद सावंत जी। धन्यवाद सभापति जी। मणिपुर देश का अभिन्न अंग है, वहां महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह केवल एक राज्य का नहीं बल्कि यह मुद्दा देश की अस्मिता और गरिमा से जुड़ा हुआ है। अतः वहां शांति व्यवस्था बहाल कर महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए। मणिपुर की घटना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हुई है। मुझे ऐसा लगता है ये तभी होता है जब सरकार को कुर्सी से ज्यादा प्यार होता है और जनता के हित से कम प्यार होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, बिजली के बिल माफ हो, किसानों का कर्ज माफ हो। सरकार को समझना होगा कि किसान मजबूत होगा तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। खाद पर सब्सिडी बढ़ाई जाए, यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद का वितरण पारदर्शिता लाई जाए। यदि समय रहते सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं कि देश में खाद्य संकट हो जाएगा। महोदया, गया में महाबोध विहार प्रकरण जो है, वहां से बुद्धि समाज में चिंता है और आक्रोश भी है। सरकार उसका हल करे, बौद्धिस्टों को उनका हक दे, जैन समाज की भावना का भी सम्मान रखे और ईसाइयों में भी हमले बंद हो और बहुजन महापुरुषों के विचारों को कार्य और पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज SC/ST पे एट्रोसिटी बढ़ रही है। जातिगत भेदभाव की वजह से बारातें रोकी जा रही हैं। अभी हाल ही की घटनाओं में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में जहां जातिगत अपमान हुआ है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में किसानों की मुख्य आय का साधन गन्ना उत्पादन है, लेकिन न गन्ने का मूल्य में वृद्धि हुई है और न ही मिल द्वारा समय पे भुगतान किया जा रहा है। गन्ना किसान मजबूत होगा तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ साथ SC/ST का प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, उल्टा निजीकरण करके नौकरी खत्म की जा रही है, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है। ये सब बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे लोगों को पता लगे कि सरकार को उनकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो समझे सरकार उनकी कितनी तेजी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मानक में बदलाव किया जाए, उससे बहुत से पीड़ित वंचित रह जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है और मैंने ये देखा अपनी आंखों से, किसी ने बरसात से बचने के लिए ईंटें लगा दी हैं, उनको मानक से बाहर कर दिया जाता है। इस वजह से वो परिवार इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। खत्म करूंगा मैं। इस वजह से उनके घर नहीं बन पा रहे और के 75 साल बाद भी लोगों पे घर नहीं है। शर्म की बात है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं और जो पहले से संचालित केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें किताबों से लेकर सभी आवश्यक एवं पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। और अंत में मैं खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, अभी ईद का त्योहार आ रहा है, हम भी ये देखेंगे और देश भी ये देखेगा कि सरकार उनको कितनी मदद करा के उस आयोजन को, उस त्योहार को मनवाने में मदद करेगी, जैसे अन्य धर्मों को लगातार मदद कर रही है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मोदी जी, खत्म कर रहा हूँ, खत्म करिए तो आवाज का हाल देख लो क्या करिए, कंप्लीट करिए प्लीज। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ जिनकी सरकार है उन्हीं की बात होगी। मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, रविदासियों की और बौद्धिस्टों की जो आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस लाठी मार रही है, मैं समय रहते चेतित कर रहा हूँ। सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बौद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बौद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाबोध विहार हमारा हक है और वो देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। 7 बजे तक बैठने का है। पहले कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में तय हो गया था
कि 6 घंटे हर विभाग पर चर्चा के लिए दिए जाएंगे, इसलिए 7 बजे तक का टाइम है सदन का। माननीय श्री आदरणीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, 3 मिनट्स। जी सर। सर, जब हम छोटे थे हमें मोहम्मद रफ़ी जी का एक गाना होता था, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। उस तकदीर का एक बहुत अहम भूमिका जो निभाती है वो हमारी शिक्षा निभाती है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है आने वाली पीढ़ियों के एजुकेशन को लेकर, और आज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर हम अपनी राजनीति को अलग रखकर हम इस पर चर्चा करें। सर, जब हम शिक्षा की बात करते हैं और तकदीर की बात करते हैं, हाल ही में एक एसर रिपोर्ट आई थी। एसर रिपोर्ट में करीब 6.5 लाख बच्चों का टेस्ट लिया गया था, रीडिंग स्किल्स का और मैथमेटिकल स्किल्स का। और दुर्भाग्य से मुझे ये बोलना पड़ रहा है जो क्लास 3 और क्लास 5 के बच्चे थे, जब उनका लैंग्वेज टेस्ट लिया गया, रीडिंग टेस्ट लिया गया, तो क्लास 2 लेवल की भी टेक्स्ट बुक को लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ पा रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। सिमिलरली जो मैथ टेस्ट था उसमें सिंपल डिवीजन क्लास 8 के बच्चे और क्लास 5 के बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन कुड नॉट डू। ये हमारे लिए एक चिंताजनक बात है कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कब बच्चों को वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं। चलिए 2024 का है सर, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जयंत, आई एम श्योर यू विल करेक्ट मी। 2024 की मैं बात कर रही हूँ सर। सर, तीसरी चीज़ मैं बात बोलना चाहती हूँ, ये लोग आगे आकर पढ़ लिख भी लें, हायर एजुकेशन की तरफ भी जाएं। तो पिछले 10 साल में करीब 89 सेपरेट केसेस हुए हैं जहां पर पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से 6.5 करोड़ बच्चे इस देश के युवा उससे प्रभावित हुए हैं। सर, महाराष्ट्र में हाल ही में चुनाव हुआ, डबल इंजन सरकार बनी, और महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार जो स्टेट बोर्ड पेपर्स हैं 10th और 12th के वो भी लीक हो गए। पहली बार हुआ है ये शर्मनाक बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। सर, करीब आरबीआई की एक रिपोर्ट है जो बताती है 25 लाख ऐसे युवा हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उनको स्टूडेंट लोन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से करीब 70% विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं। और वो भी एक चैलेंज है हमारे सामने, क्यों वो विदेश जाते हैं, क्यों हमारे देश में ही हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं बना पा रहे हैं जहाँ पे ये पढ़ाई कर सकें। 70% जो हैं इसमें से जो विदेश जाते हैं, जो 25 लाख बच्चे हैं जो युवा हैं एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ 7 लाख बच्चों को ये मिलता है। बाकियों को पर्सनल लोन लेना पड़ता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 14% है, कहीं कहीं 14 से 18% है। इस पर भी मैं मानती हूँ एजुकेशन मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खास करके महिलाएं जो हैं जो पढ़ाई करना चाहती हैं, उनको कैसे ये लोन का माध्यम जो है उनको अच्छे से मिल सके। सर, आईआईटी की बात हुई थी बजट में, जहाँ पे निर्मला जी ने कहा कि सीट्स और बढ़ाने वाले हैं आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेने के लिए। पर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है आईआईटी में पढ़कर, जब आईआईटी का उनको, सर 1 ही मिनट लूँगी, समाप्त करें। आईआईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस उम्मीद से इस कॉलेज में जाते हैं अच्छी एजुकेशन तो मिलेगी ही, अच्छा प्लेसमेंट भी मिलेगा। आईआईटी मुंबई हो, आईआईटी गुवाहाटी हो, उसने एम्प्लॉयमेंट का जो जॉब प्लेसमेंट्स हैं उसमें गिरावट देखी है। आईआईटी दिल्ली हो, उसमें भी गिरावट देखी है। तो मैं बस यही इसी लास्ट चीज़ से मैं समाप्त करना चाहूँगी। महिला हूँ सर, जो एसर रिपोर्ट की मैं बात करी थी, उस रिपोर्ट में एक और चीज़ सामने आई है, एक्सेस टू स्मार्टफोन्स। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सेस टू स्मार्टफोन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें भी जेंडर का जो डिवाइड है वो बहुत ऑब्वियस है। 70% अगर लड़कों के पास स्मार्टफोन का एक्सेस है तो सिर्फ करीब 60% महिलाओं के पास है। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी सर। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। श्री उपेंद्र कुशवाहा। श्री संजय सिंह, सर यू हैव 14 मिनट्स। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं और आज जब हम लोग शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करना बहुत आवश्यक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा।
अगर भारत शिक्षित बनेगा तभी विकसित बनेगा मान्यवर। शिक्षित भारत ही विकसित भारत बन सकता है। लेकिन वास्तव में इस शिक्षित भारत की सच्चाई क्या है? हो सकता है कि सरकार ने अपनी ओर से बड़े बड़े दावे किए हों, बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की हों, लेकिन जमीन पर उसकी सच्चाई क्या है, यह आपके माध्यम से सरकार को और देश को जानना जरूरी है। मान्यवर, सबसे पहले मैं आपके सामने पूरे देश में ड्रॉप आउट स्टूडेंट का आंकड़ा रखना चाहता हूं। वर्ष 2022-23 और 23-24 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में 54,77,223 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है मान्यवर। 54,77,223 बच्चों ने, और ये बच्चे एक कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे। इनमें आसाम का अगर आंकड़ा पढ़ें तो 3,58,075 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। गुजरात का अगर आंकड़ा पढ़ें, जिसके विकास के बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, 1,38,813 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा क्लास 1 से क्लास 8वीं तक छोड़ी है। अगर आप मणिपुर की बात करें, 17,991 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। अगर आप मेघालय की बात करें, 65,532 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। अगर आप राजस्थान की बात करें, 8,99,240 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7,41,626 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। दिल्ली का आंकड़ा मैं जान रहा था कि हमारे भाई दिल्ली का आंकड़ा जरूर पूछेंगे, इसलिए बोलना जरूरी है। दिल्ली का आंकड़ा, दिल्ली में वर्ष 2022-23 और 23-24 का मिला के अगर आप आंकड़ा देखेंगे, इनका ही आंकड़ा है सरकार का, मैं चाहता हूं पढ़ भी लेंगे हमारे साथी, 7,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। ये आंकड़े मान्यवर बहुत चौंकाने वाले, बहुत परेशान करने वाले और ये बताने वाले हैं कि सरकारी स्कूल से किस तरह से पूरे देश में शिक्षा छोड़ के बच्चे अपने घर पर बैठ रहे हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के बारे में जो मैंने आंकड़ा पढ़ा है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। इनको इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा मामला आता है मान्यवर पेपर लीक की घटनाएं कितनी हुई पूरे देश में? पिछले 7 वर्षों में 70 एग्जाम ऐसे हैं, 70 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें पेपर लीक हुआ। 70 परीक्षाएं मान्यवर। कितने परिश्रम से एक कांस्टेबल की परीक्षा के लिए एक बेरोजगार नौजवान अपनी तैयारी करता है, कितने परिश्रम से एक क्लर्क की नौकरी के लिए, एक पीसीएस आईएएस की नौकरी के लिए, कितने परिश्रम से अपने घर की जमीन बेच के एक नौजवान परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। कहीं मेडिकल में दाखिला लेना हो, उसके एग्जाम में, नीट की परीक्षा में पेपर लीक, कहीं नौकरी के लिए कोई परीक्षा दे रहे हैं, क्लर्क की, कांस्टेबल की, उसके पीछे पेपर लीक। ये पेपर लीक की घटनाओं के लिए कोई राष्ट्रीय नीति, कोई राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे पेपर लीक की घटना रोकी जा सके। मैं पेपर लीक से प्रभावित होने वाले छात्रों की संख्या अगर पढ़ूंगा तो पूरे सदन को इसके बारे में अफसोस होना चाहिए। आपका आंकड़ा है 1,70,00,000 नौजवान ये पेपर लीक की घटना से, हमारे बच्चे बच्चियां, छात्र छात्राएं
बेरोजगार नौजवान प्रभावित हुए हैं। और इसमें क्या घोटाला हुआ है? आप जिसको परीक्षा कराने का ठेका देते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए आपने ठेका दिया ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी को। विनीत आर्या नाम के व्यक्ति की एक कंपनी है जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गहरा रिश्ता है। और इसमें यह पाया गया कि 69,000 कांस्टेबल की भर्ती में इस कंपनी ने पेपर लीक कराया, घोटाला किया, गड़बड़ी किया, इसको ब्लैकलिस्ट किया गया। जांच एजेंसियों के सामने यह आदमी प्रस्तुत नहीं हुआ और इसके बाद इसी कंपनी को बिहार में भी एग्जाम कराने का ठेका दे दिया गया। यह आपका प्यार है, आपको छात्रों के, नौजवानों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम करना है। तीसरा जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है आपके अलग अलग योजनाओं में जो आपने खेल किया है, और ये खेल समझना बहुत जरूरी है। आपने एक स्कीम शुरू किया, SC, ST, OBC के बच्चों को छात्रवृत्ति की स्कीम, उनको स्कॉलरशिप देने की स्कीम। इसका नाम रखा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम। इतना लंबा भारी भरकम नाम पढ़ के आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है, जैसे प्रधानमंत्री जी SC, ST, OBC के लिए कोई बहुत क्रांतिकारी कदम लेके आए। इस योजना में क्या किया आपने? और इसमें हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग और PhD के जो छात्र हैं ST, SC, OBC के, उनको अब स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं। इसमें आपने 2023-24 में 98 करोड़ रुपए खर्च किया। 2024-25 में इस स्कीम को बढ़ा के आपने 1558 करोड़ रुपए बजट में निर्धारित किया। बड़ी खुशी की बात है। 98 करोड़ खर्चा हुआ 23-24 में और 1558 करोड़ आपने बजट बढ़ा के कर दिया, निर्धारित कर दिया 24-25 में। फिर आप रिवाइज्ड बजट लेके आते हैं, संशोधित बजट लेके आते हैं। ये 1558 करोड़ की स्कीम घटा के आपने इसको 1000 करोड़ कर दिया। 1000 करोड़ करके 24-25 में इसको 1000 करोड़ किया, यानी कि इसी स्कीम